question that again Member Premchandran asked, that how can we justify that in 2019-20 there was no COVID? Of course there was no COVID. The budget estimate of fiscal deficit was 3.3% of the GDP, whereas in the revised estimate for that very year, it has been shown as 4.6%. That's a question which Honorable Member Premchandran has raised, and I would definitely like to answer that because it has, I'm sure, a matter of interest for a lot of members. In August 2020, sir, the government has placed a statement of deviation on the fiscal deficit as per the provisions of Section 7, 3B of the FRBM Act in the Parliament. This statement, and I draw your attention, Honourable Member, to this statement outlines the reason for deviation of 0.8% from the revised target of fiscal deficit of 3.8% of GDP for the year 1920. The deviation was necessitated on account of structural reforms both on the supply and on the demand side, and therefore that was brought in. One important aspect, sir, some members have questioned whether allocations for minority affairs, whether allocations for SC and ST have been reduced. No, they have not. Total allocation for minority affairs is 4,811 crores in the BE of 21-22, which is an 8.6% increase for that ministry, higher than even the actual expenditure, and therefore that's not been reduced. So on the SC/STs, overall allocation provided for the welfare of SCs have shown an increase from 83,257 crore in 2020-2021 compared to 1,26,259 crore in this BE presented as budget now for 21-22. The overall allocation provided for the welfare of STs have also shown an increase from 53,653 crores in the BE of 2020-21 to 79,942 crores in the BE of 21-22. Sir, I think most of what members had asked, I think, have addressed. However, there's one issue which I would want to draw the members' attention. On employment, I've given a lot of information, opposition leader. ट्रांसफर टू होम पीएम गरीब कल्याण योजना में किया 20 करोड़ महिलाओं को 31,000 करोड़ 3 करोड़ दिव्यांग विधवाओं को भी और बाकियों को भी किया 3,000। Sir, Sir, I'll come to one issue on which I certainly want to draw the attention of this House. So there is a culture in this House since when the Parliament was established, and all of us have been swearing by the Constitution. And functioning effectively to make India a very strong democracy. But it was such a disappointment for me. I was here that day to hear the former president of the opposition party stand up and say, I will only speak on the farmers' issue and then I'll go quiet. Honorable Speaker, sir, because there was a lot of demand and you gently reminded, saying there is this budget discussion now and that we should discuss the budget. Huh? Yes, I concede that, no worry. What am I doing? Sir, I'd like to ask you, sir, what am I doing? I am talking on the budget. I am talking on the budget. I am replying to the members who stood up and spoke on the budget debate. For each one, they are on their issue.
on each one on their issue. Each member stood up and spoke the issues which they thought were. Please listen. Please listen. Please listen. Don't unnecessarily read my mind in advance. Please listen. Sir, Honorable Speaker, sir, the attempt here is to reply to each member for the various issues that they have raised. And I shall reply for the issues raised. Yes. And even justifying now, I agree. Oh, farm issues definitely are relevant for the budget. And even the honorable member who's not present here, and I'm not taking his name, but I also want to address the issues raised by him that day. Farm issues will have to be spoken because they are also part of the budgetary discussion. And yes, don't worry, I'm answering. Please hear now. Please hear. Sir, kindly sir, you don't want me to answer issues raised by your honorable leader? I'm answering. I'm answering. Sir, oh yes, don't worry, I'm answering that. You don't mind? You don't mind? Sir, if you have heard Honorable Member Suresh, who says I should take the name, and if you give me the permission, in the absence of that member, I'll take his name. All right, sir? Now, therefore, and the member had said, farm bills are also part of the budget, and I'm laying the foundation. And therefore, I'm speaking about it. And therefore, I'll please respond, sir. I'm sure you will help me. When he stood up, since Kodikonil Suresh ji has given me permission, and you, I suppose, wouldn't mind me, Sri Rahul Gandhi, when he stood up and to speak, he बोलिए मंत्री जी बोलिए आप बोलिए sir, for the foundation laid on the budget. नहीं, एक मिनट मंत्री जी, माननीय मंत्री जी किसी का नाम ले दिए तो सदन का सदस्य तो नाम ले सकती है, उसमें क्या दिक्कत है? वो सदन का सदस्य नाम ले सकती है। उपस्थित नॉन उपस्थित का सवाल नहीं, माननीय सदस्य का नाम ले सकते हैं। सर, सभी सदस्यों का नाम ले रही है ना, जिन ने बजट पर चर्चा करी है। बोलिए सर। When the foundation was being laid for the budget speech, which never happened, on the matters raised during that laying of the foundation, there are some things which I want to ask. And I'll also say my expectation, when he stood up to lay the foundation, my expectations were that he will explain as to why the Congress party has taken a U-turn in its position. 2019 election manifesto, they said that very similar things which we have done in the Farm Act. So, sir, please, sir, allow me to give a response. So, this kind of a disruption is unwarranted. Please, Manager, please. Have I said anything unparliamentary, sir, for this disruption? Sir, we expected that he would stand up. This is number one. I have 10 such things to say. 10 विषय के ऊपर मैं मेरा एक्सपेक्टेशन आपके सामने रखना चाह रही हूं, सर, जिसको कभी ना कभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जवाब देना ही पड़ेगा। सर, खड़े होकर के जब फाउंडेशन ले कर रहे थे बजट स्पीच का, जो बजट स्पीच नहीं हुआ, उसका फाउंडेशन ले करते हुए फर्स्ट इशू मेरा एक्सपेक्टेशन था, बजट में चर्चा करने से पहले फार्म लॉस के ऊपर ये बात बोलेंगे, ये स्पष्टीकरण देंगे कि क्यों कांग्रेस पार्टी की पोजीशन यू टर्न लिया। पहले तो इसका समर्थन देते थे, अभी क्यों बदला, वो पहला है। सेकंड, फार्मर्स के इतना ध्यान देने वाले कांग्रेस फार्म लोन वेवर के बारे में बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्शन जीतने के लिए
वायदा देते थे कि फार्म लोन दे रहे हैं हम, प्लीज वोट दे दो, जनता भी भरोसा रख करके वोट दिलाए, मगर मध्य प्रदेश में उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। फार्मर्स आज तक मांग रहे हैं लोन वेवर, क्यों नहीं हुआ? हमें वोट मांगा, वोट ले लिया, सरकार बनाने के बहाना किया, मगर सत्ता भी उनके हाथ में नहीं है। मगर फार्म लोन का गुमराह करके किसानों का बैकस्टैप करके चले गए कांग्रेस। राजस्थान में आज भी कंप्लेंट्स है, फार्म लोन नहीं हो रहे। मेरा एक्सपेक्टेशन था सर, फार्म लोन सर, कर्जा माफी राजस्थान में नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, जहां भी छत्तीसगढ़ में भी कर्जा माफी नहीं हुआ। सर, मेरा एक्सपेक्टेशन यही था जब वरिष्ठ नेता उठ करके भाषण देने से पहले फाउंडेशन लेकर रहे थे, कम से कम ये मानेंगे कि कर्जा माफी क्यों नहीं हुआ, उसको बयान देंगे, नहीं दिया। सर, तीसरा 10 में से तीसरा, मैंने सोचा वो खड़े होकर के फाउंडेशन बजट के भाषण देने से पहले ले कर रहा है, उस समय कम से कम ये बात बोलेंगे कि मैंने आदेश दे दिया पंजाब सीएम को, वो जो काला कानून है जिसके द्वारा किसान जेल में जाने वाले का प्रोविजन है, उसमें 5 लाख का फाइन का प्रोविजन है, प्रावधान है उसमें, वो दोनों को हटाने के लिए मैंने हमारा चीफ मिनिस्टर पंजाब का उनको आदेश दे करके आया हूं। ये बात पार्लियामेंट में खुलासा करेंगे, ये मैंने सोचा, मैंने एक्सपेक्टेशन रखा, मगर ना, वो भी नहीं हुआ। मगर आरोप इस तीनों कानून के ऊपर। ये तीसरी बात, 4th पार्ट सर, राहुल गांधी जी उस दिन जब बात कर रहे थे बजट में नहीं, फार्म लॉस के ऊपर, फाउंडेशन है, ठीक है, सुनते हैं, उस समय मैंने ये भी एक्सपेक्ट किया वो कम से कम ये बात बोलेंगे कि किसान को बहुत ही दुख है, दर्द है, वो पराली के विषय में उनको बहुत ही दुख हो रही है, उसके वजह से उनको कुछ राहत दिलाएंगे कांग्रेस के सरकार के द्वारा पंजाब में, जिससे पराली वो अभी का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, उनको राहत दिलाएंगे, ये घोषणा करेंगे। ये भी मैंने एक्सपेक्ट किया, नहीं, वो भी नहीं हुआ सर। 5वीं, मैंने सोचा नहीं, बजट के ऊपर चर्चा नहीं, फार्म लॉस के ऊपर मैंने ये एक्सपेक्ट किया कि हमारे 3 जो कानून है उसमें से कम एक खंड निकाल करके, एक क्रॉस निकाल करके वो बोलेंगे देखो इस क्रॉस के वजह से किसान को नुकसान होने वाले हैं, इसीलिए हम समर्थन नहीं करेंगे। इधर वोटिंग में भाग लिया, समर्थन दिया, फिर भी अभी मन बदल दिया, और इस क्रॉस के वजह से ऐसे करके इन 3 कानून से कम एक पॉइंट दिखाएंगे कि दिस इज अगेंस्ट द फार्मर। मैंने सोचा, मैं एक्सपेक्ट किया वो कम से कम वो बात बोलेंगे फाउंडेशन ले करने के समय, नहीं, वो भी नहीं हुआ। सब 5th पॉइंट हो गया। 6th पॉइंट में आ रही हूं। मैंने ये भी एक्सपेक्ट किया कि राष्ट्रपति भाषण के समय माननीय प्रधानमंत्री जी का जवाब था, उसमें उन्होंने बहुत सारे छोटा किसान के ऊपर बात बोली। मैंने सोचा उन विषयों में, क्योंकि छोटा किसान से हमारे दो के लिए किसान से जमीन हड़पती गए, मैंने सोचा वो खड़े होकर के ये बात बोलेंगे, प्रधानमंत्री जी आपने तो स्मॉल फार्मर्स के ऊपर इतना अच्छा बोल दिया, मैंने मेरे अपना 2 से बोल दिया प्लीज जमीन वापस कर दो फार्मर्स को, क्योंकि हम तो सस्ते में उनसे ले लिया, मगर ये किसान का जमीन है, हम खड़े होना है,
राजनीति में है, इसीलिए राजनीति के हमारे परिवार हम और मैं खड़े होना है, आप जमीन वापस कर दो जी। और इधर हाथ करके बोल सकते थे हमारे दो में दामाद को मैंने आदेश करके आई हूं कि जमीन वापस करो, नहीं किया, वो भी नहीं हुआ। मेरा एक्सपेक्टेशन वो 6th था सर, नहीं हुआ। 7th सर, 7th मेरा एक्सपेक्टेशन, 7वीं मेरा एक्सपेक्टेशन, प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का कोटेशन पढ़ाया कि उनके तरफ से भी ऐसे प्रावधान किसान के लिए होना चाहिए, ये भी बोले। मैंने सोचा उस दिन फाउंडेशन ले करने के समय बजट इंपॉर्टेंट नहीं है, किसान कानून इंपॉर्टेंट है, वो कम से कम बोले कि क्यों डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्टेटमेंट को कांग्रेस अभी भूल जा रहे हैं, और याद प्रधानमंत्री जी ने दिलाया। मैंने सोचा कम से कम वो मानेंगे, हाँ हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऐसे बात किया है, आई हैव टू रेस्पेक्ट, वी विल रेस्पेक्ट नाउ, वी वोंट डिसऑनर डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये कहेंगे, ऐसे मैंने एक्सपेक्टेशन रखा, मगर वो भी नहीं हुआ सर। दैट वाज द 7th। मेरा 8th एक्सपेक्टेशन यही था, मेरा 8th एक्सपेक्टेशन, मैंने सोचा चर्चा के समय, बजट के चर्चा के समय, क्योंकि किसान कानून बजट में भाग हो सकता है, इसीलिए बहुत सारे मेंबर्स ने यह प्रश्न उठाया। मुझे याद है मैं सुनी कि एपीएमसी देश भर में कहीं ये तीनों कानून आने के बाद बंद हुआ है क्या? कहीं बंद नहीं हुआ। मैं मेरा एक्सपेक्टेशन के साथ अभी प्रश्न भी पूछ रही हूं, prove even if one APMC mandi was shut, not one was shut, but you are standing up and speaking, ऊपर से बजट में प्रावधान किया गया है that 30,000 crores which will be collected through that agricultural development infrastructure set will be actually be going to the state so that APMC infrastructure can be improved. हम ऊपर से फंड भी दे रहे हैं स्टेट्स को APMC का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, ये भी नहीं बोला, मगर फाउंडेशन लेते रहा, फाउंडेशन ले करते रहा, भरे नहीं और वापस चले भी गए बिना चर्चा बजट के ऊपर। सर, 9th पॉइंट, ये मेरा प्रश्न है, एक्सपेक्टेशन था मगर अभी प्रश्न है, वो क्यों, why does he choose to insult constitutional authorities? Why does he choose to insult constitutional authorities? क्योंकि उस दिन इधर सम्मान्य स्पीकर साहब को इंसल्ट हुआ, उनके बड़प्पन है, उन्होंने जस्ट आप लोग ने मुझे चुनकर इधर बिठाया, इसलिए प्लीज हाउस शुड गो एज पर द रूल्स ऑफ दिस हाउस, ऐसे करके बात छोड़ दिया। मगर इधर इंसल्ट, इससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह का इंसल्ट वो कानून के ऊपर, उससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह विदेश में जब प्रधानमंत्री के नाते गए थे, उस समय उनके द्वारा पास किए गया ऑर्डिनेंस को फाड़ करके फेंका कूड़े में। व्हाई डज ही चूज टू इंसल्ट? एंड राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद चर्चा जो हाउस में होता है, वो खत्म होने के बाद भी उसी विषय के ऊपर चर्चा करना और उसी विषय को कुछ बहाने बात बोलते रहना, कंटिन्यूअसली इंसल्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड अथॉरिटीज, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सबके प्रधानमंत्री हो, आपके प्रधानमंत्री हो, कंटिन्यूअसली इंसल्टिंग। Oh yes, Speaker. Sir, last 10th point, sir. 10th point. मेरा 10th point. Sir,
कंटिन्यूअसली फेक नरेटिव्स क्रिएट करते रहे। अरे रे कोविड आ गया, पूरे भारत नुकसान में चले जाएगा, अरे रे इतने सारे लोग मर जाएंगे। मेरे पास पूरे कोटेशन है, समय समय पर जो हमारे वरिष्ठ नेता बोलते रहे, मेरे पास पूरे कोटेशन से। मैं आपके समय इसमें बिताना नहीं चाहती हूं। आई डोंट वांट टू स्पेंड द हाउसेस टाइम ऑन द कोटेशन, बट द सारांश is this: I will constantly say things which will demean India, which will show India in a poor light, and constantly that will be my rebel-like look to insult India, build fake narratives. Nothing will go well for India, यही कहते रहे। और हमारे खिलाफ बहुत सारे जो kind of mischiefs, I'm using a lighter word, करने वाले देश के साथ पार्टी की ओर से, सरकार एमओयू नहीं, सरकार एमओयू नहीं, पार्टी टू पार्टी एमओयू करके, जब देश का कुछ बॉर्डर में क्राइसिस होता है तब हमसे ना बात करते हुए, सरकार से हम छोड़ो, सरकार से ना बात करते हुए उनके दूतावास से बात करके क्या हो रही है बॉर्डर में करने वाले और कभी भी भारत देश का भरोसा ना करते हुए बाकी सबको भरोसा करने वाले, और ज्वाइनिंग द ब्रेकिंग इंडिया फ्रिंज ग्रुप, एक वरिष्ठ पार्टी के नेता एक फ्रिंज ग्रुप के साथ ही बार बार पॉलिटिक्स करना और भयंकर अब्यूज, total unacceptable terminology for constitutionally elected heads उपयोग करते रहना और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कटाक्ष होने के बाद अपोलोजाइज करना, मगर दोबारा वही साइकिल में अब्यूज करो, अपोलोजाइज करो, यही रास्ते पे चलना, डिस्ट्रक्टिव पॉलिसीज करना। I'm very scared to think probably he is becoming the doomsday man for India. और हमारे दुख की बात यही है कि ऑपोजिशन जो पार्लियामेंट में स्ट्रांगली पोजीशन लेकर के सरकार को कटघरे में रख के प्रश्न पूछने का रोल करने वाले ऑपोजिशन आज डूम्सडे मैन के नेतृत्व में, और डूम्सडे मैन जो रिपीटेडली अब्यूज करता है, और देखो, और सर मैं ये बात भी बोल रही हूं उस दिन, नो यू कांट हैव दिस ऑब्जेक्शन, यू आर बाउंड टू आंसर। पार्लियामेंट में डिबेट ऑन बजट, सर लेट देम हैव द स्ट्रेंथ टू एक्सेप्ट दिस, डिबेट ऑन बजट हैपेंस ट्रेडिशनली, budget debate happens every year. India's history में discussion on budget happens every year. I won't discuss budget करने वाले opposition leader क्या रोल प्ले करना चाहता है, कौन सा रोल प्ले करना चाहता है? I want to ask of you, sir, budget discussion happens every year and चौधरी जी आप जरा सुनिए, राज्यसभा में, नो आई एम नॉट यील्डिंग, राज्यसभा में जो पार्टी जिनका वरिष्ठ नेता बजट के ऊपर चर्चा करती है और प्रश्न पूछने के बाद जवाब सुनते हैं, और उस जवाब चाहे पसंद हो नापसंद हो, एक्सेप्टेबल हो या नहीं हो, फिर वो एक पोजीशन लेते हैं, वो इधर क्यों नहीं हुआ? वही पार्टी राज्यसभा में एक पोजीशन, इधर दूसरा पोजीशन, ये क्या तरीका है सर? इसीलिए मैं विद दिस 10 क्वेश्चंस आई वांट, वी विल टेल यू अबाउट एवरीथिंग दैट यू वांट। सर कांग्रेस पार्टी के 2 विषय में, सर प्लीज सिट डाउन चौधरी जी, 2 टेंडेंसीज के साथ मैं खत्म कर रही हूं। 2 टेंडेंसी मुझे स्पष्ट दिखाई दे रही है। एक है ये जो फेक नैरेटिव्स का टेंडेंसी है, हमने क्रिएट किया है, हम मनरेगा, हमने ये किया, हमने,
आखिर आप ही उसमें कुछ मन नहीं रखे, उसको आगे बढ़ाने में एफिशिएंट नहीं है। अलोकेशन एक है, आखिर यूटिलाइजेशन कम है। ऐसे ही हर स्कीम में अपने के लिए कुछ देखने का आदत एक टेंडेंसी है, उसमें क्रोनी कैपिटलिज्म भी, उसमें सिस्टम। हमने बैंक को नेशनलाइज किया, मगर पूरे बैंक को उपयोग फोन बैंकिंग के द्वारा करके एनपीए छोड़कर चले गए। ये है उनके टेंडेंसी। दिस इज वन टेंडेंसी ऑफ क्रिएट इंस्टीट्यूशन, मिसयूज देम, यूज इट फॉर आवर ओन, हम दो हमारे दो, and end of the day keep accusing others. That is one tendency, sir. And the second tendency is हम जो भी कहेंगे पार्लियामेंट में, आपके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस डालेंगे, आपके ऊपर अब्यूसिव लैंग्वेज भी यूज करेंगे, मगर आप जब सिस्टम के तहत खड़े होकर के पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देने के लिए खड़े होते हैं, सुनने को तैयार नहीं है। अभी जैसे हो रही है, कभी भी डिस्टर्ब करो, चिल्लाते रहो या तो वॉकआउट करो। वही हुआ बजट डिबेट में। इसीलिए दो टेंडेंसीज कांग्रेस पार्टी का हमने पहचानना चाहिए, और इससे यह स्पष्ट होता है उनका बिलीफ इन डेमोक्रेटिक इलेक्टेड पार्लियामेंट्री सिस्टम इज कंप्लीटली खत्म। धन्यवाद। आइटम नंबर 28-29 जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 सांविधिक संकल्प श्री अधीर रंजन चौधरी जी। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा लिस्ट ऑफ बिजनेस दीजिए तो। Sir, I rise to move the following resolution that this House disapproves of the Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Ordinance 2021, Ordinance number 1 of 2021, promulgated by the President on 7 January 2021. माननीय मंत्री जी, बिल इंट्रोड्यूस, हल्का सा बता दें। बिल इंट्रोड्यूस करो। हल्का सा Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to move that the bill to amend Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 as passed by Rajya Sabha be taken into consideration. अध्यक्ष जी, ये जम्मू कश्मीर अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अनुसार जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू एंड कश्मीर यूटी का विथ लेजिस्लेचर और लेह एंड कारगिल जिलाओं को मिलाकर लद्दाख को यूटी को बनाते हुए विदाउट लेजिस्लेचर का रिकॉग्नाइज किया गया। इस दोनों में यूटीज की देश के साथ कंप्लीट इंटीग्रेशन के बाद हर एक भारतवासी का वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन का स्वप्न था, वो पूरा नरेंद्र मोदी जी सरकार ने किया है। अभी इसके बाद एक होलिस्टिक डेवलपमेंट सरकार का जिम्मेदारी बनता है। इसी दृष्टिकोण से पब्लिक वेलफेयर को हर लेवल पर होलिस्टिक डेवलपमेंट विकास के ओर दो स्टेट को ले जाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, मगर जो कैडर था वो सिर्फ जम्मू कश्मीर का आईएएस हो, आईपीएस हो, आईएफएस हो, ये कैडर जम्मू कश्मीर का कैडर अभी क्योंकि लगभग 170 आर्टिकल 370 एप्लीकेशन के बाद 170 सेंट्रल एक्ट पहली बार जम्मू कश्मीर में हम लागू कर रहे हैं और अलग अलग डेवलपमेंटल एक्टिविटी जो 70 साल में जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ था, नेग्लेक्ट करते थे,
पहली बार जम्मू कश्मीर एब्रिगेशन के बाद अभी डेवलपमेंटल एक्टिविटी इंप्लीमेंट कर रहे जम्मू कश्मीर में। इसके लिए थोड़ा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हो, स्टेट गवर्नमेंट का अलग अलग कार्यक्रम हो, इसके अतिरिक्त सोशल अपलिफ्टमेंट का प्रोजेक्ट हो, एग्जीक्यूट करना जरूरी था। ये इसके लिए अलग अलग स्कीम को लिए कैडर स्ट्रेंथ की बेहतर करने के लिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस रखने वाले ऑफिसर्स बहुत जरूरी है। जम्मू कश्मीर का एडमिट कैडर के साथ विलय करना, मर्जर करने के लिए प्रपोजल से जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का जो भी कैडर है, आईएसओ, आईपीएसओ, आईएफएसओ, उसको एडमिट के कैडर के साथ ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों को सेवा में लेने के लिए ये हम ऑर्डिनेंस था अभी विधेयक रूप में आपके सामने लाए हैं। ये इसके कारण जम्मू कश्मीर के अलग अलग एक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो कैडर स्ट्रेंथ कम था, अभी सेंट्रल पूल से, जो एडमिट पूल से कैडर को ले सकते हैं। यही विषय इसमें, इसलिए मैं आपके द्वारा संसद से महानुभावों से अनुरोध करता हूं इस विधेयक को पारित करने के लिए। श्री अधीर रंजन चौधरी जी। सर, मेरा तो पहला आपत्ति ये है कि जो हमारे मंत्री कह रहे हैं इसके लिए ऑर्डिनेंस लाने की क्या जरूरत था, मैं ये समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि इफ यू invoke and promulgate ordinance at a regular interval, I think it does not augur well for the parliamentary democracy of our country. Yes, you certainly promulgate ordinance, but it should be preceded by emergency situation or any urgency and extraordinary phenomena. But if you go for promulgating ordinance at a regular interval, it appears that you are losing your confidence and faith upon the parliamentary democracy of our country. The fact is that you have promulgated the ordinance in a very supercilious manner without having any reason or rhyme. You are simply indulging the root of ordinance. There lies our objection. That is why I have moved the statutory resolution. You should not be